we have discussed the conductivity of electrolytic solution. So last class में हमने जो 4 वेरिएबल डिस्कस किए, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, resistivity and the conductivity, these 4 variables are basically defined for electrolytic conductor. Or electrolytic conductor is what? Aqueous solution or a solution of an electrolyte in their specific solvent, which consists of ions. जो क्या कंसिस्ट कर रहा है? आयंस कंसिस्ट कर रहा है. तो वहां हमने कंडक्टिविटी का एक्सप्रेशन क्या फाइंड आउट किया था? कंडक्टिविटी इज कापा and that is equals to G into L by A, where G is conductance and L by A is a cell constant. So how can we define the conductivity of electrolytic conductor? That kappa is equals to, numerically equals to G if L is equals to 1 centimeter and A is equals to 1 centimeter square. So how can we define the conductivity of electrolytic conductor? That conductivity of electrolytic solution, electrolytic conductor को हम क्या बोल सकते हैं? Electrolytic solution. So conductivity of electrolytic solution is numerically equal to the conductance of all the ions present in the solution, in which electrodes are separate through each other by 1 centimeter distance and having a cross section area of 1 centimeter square. मतलब जो electrolytic solution है that plays in a container, because electrolytic cell में both the electrons are dipped into the same electrolytic solution. So what is the conductivity of electrolytic solution? Conductivity of electrolytic solution is the conductance of all the ions present in the solution, in which electrodes are dipped and have these electrodes have a cross section area of 1 centimeter square and the separation between them is 1 centimeter. जब आप इन इलेक्ट्रोड्स को पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डिप कर रहे हैं, उस सॉल्यूशन में जो प्रेजेंट आयंस है, उन आयन की जो कंडक्टेंस होगी वही कंडक्टेंस क्या बोली जाएगी? कंडक्टिविटी. कंडीशन क्या है कि जो आपके इलेक्ट्रोड्स हैं वो इलेक्ट्रोड एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर होने चाहिए और उनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होना चाहिए? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर. इफ सपोज लेंथ आपकी 1 सेंटीमीटर है, gap between the electrode is 1 centimeter and area of cross section of conductor or electrodes are 1 centimeter square. तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? L into A, that is 1 into 1 यानी 1 centimeter क्यूब. तो इसको थोड़ा और सिंपल बनाना चाहें तो कंडक्टिविटी का दूसरा डेफिनेशन क्या बन सकता है? The conductivity of electrolytic solution or electrolytic conductor is the conductance of ion present in 1 centimeter cube solution. It is a conductance of ions present in 1 centimeter cube of solution. वो आयन जो 1 centimeter cube solution में प्रेजेंट होते हैं, उन आयन की जो कंडक्टेंस होगी वही कंडक्टेंस आपकी क्या बोली जाएगी? कंडक्टिविटी. So how can we define the conductivity of electrolytic solution? 2 definitions are there. मैं दोनों को रिपीट कर रहा हूं वापस से. The conductivity of electrolytic solutions is numerically equal to the conductance of ions when solution is placed between electrodes of having a 1 centimeter square cross section area and having a gap between them is 1 centimeter. या फिर it is a conductance of ions of solution of volume 1 centimeter cube. It is a conductivity is a conductance of ion of solution having a volume 1 centimeter cube. Is it clear? Is it clear? ठीक है. अब देखिए यहाँ हम जो मेनली डिस्कस कर रहे हैं वो डिस्कस कर रहे हैं कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन.
An electrolytic solution basically consists of a electrolyte which on dissolving in particular solvent it will be dissociate into the ions. यदि आप एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं तो उस इलेक्ट्रोलाइट की अपने पर्टिकुलर सॉल्यूशन में जो सॉल्युबिलिटी है या उसका डिसोसिएशन जो है उसके रिस्पेक्टिव आयंस में जिस अकॉर्डिंग होगा उसी अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, सॉल्यूशन के अंदर कंडक्टिविटी क्रिएट करेगा। ठीक है, सो कंडक्टिविटी जो है दैट बेसिकली डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कि आप कौन सा इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं और उस इलेक्ट्रोलाइट की क्या कंसंट्रेशन है, उन दोनों पे डिपेंड करेगा। क्योंकि देखिए कंडक्टिविटी बेसिकली किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रही है, आयंस की वजह से। जितने ज्यादा आयंस प्रोड्यूस होंगे उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी होगी। जैसे सपोज बेसिकली अब हमें डिस्कस क्या करना है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को हम फर्दर दो कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं, वन इज अ मोलर कंडक्टिविटी एंड वन इज अ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ठीक है, बट बिफोर डिस्कसिंग द मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी वी आर टेकिंग वन एग्जांपल। ठीक है, कि नाउ वी आर टेकिंग 3 इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ सेम अमाउंट, यानी हमने एक तीन इलेक्ट्रोलाइट लिए। जैसे फॉर एग्जांपल वी आर टेकिंग 1 मोल ऑफ NaCl, 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट एंड 1 मोल ऑफ सोडियम सल्फेट। हमने क्या लिए, 3 इलेक्ट्रोलाइट लिए डिफरेंट। 1 मोल ऑफ NaCl, 1 मोल ऑफ sodium sulfate and 1 mole of aluminium sulfate, and all these 3 electrolytes are dissolved in their respective solvent. अब देखिए जैसे ये सोडियम क्लोराइड डिसॉल्व होगा अपने पर्टिकुलर सॉल्वेंट में, इट विल बी प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ सोडियम आयन एंड 1 मोल ऑफ क्लोराइड आयन। जैसे इसके 1 मोल मॉलिक्यूल्स पर्टिकुलर 1 मोल मॉलिक्यूल्स हैं, यानी Na मॉलिक्यूल्स जैसे ही डिसोसिएट होंगे तो ये क्या करेंगे, Na सोडियम आयन बनाएंगे और Na क्लोराइड आयन बनाएंगे। यानी 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं, Na मींस एवोगाड्रो नंबर। तो क्या बन जाएंगे आपके पास 1 मोल सोडियम आयन और 1 मोल क्लोराइड आयन। जैसे सोडियम सल्फेट डिसॉल्व होगा तो सोडियम सल्फेट क्या करेगा, इट विल फॉर्म 2 मोल्स ऑफ सोडियम आयन एंड 1 मोल ऑफ सल्फेट आयन। और जब एल्यूमिनियम सल्फेट डिसॉल्व होगा इट विल फॉर्म 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम आयन एंड 3 मोल्स ऑफ सल्फेट आयन। अब देखिए तीनों के मोल्स सेम थे, लेकिन जैसे ही ये अपने पर्टिकुलर आयंस में डिसोसिएट हुए द अमाउंट ऑफ चार्ज या अमाउंट ऑफ आयंस विल बी डिफरेंट। यहाँ क्या हुआ, 1 मोल सोडियम आयन और 1 मोल क्लोराइड आयन। अब हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था, दैट इज नंबर ऑफ फेराडे, या फिर हम बोल सकते हैं फेराडे। फेराडे कांस्टेंट क्या होता है, फेराडे कांस्टेंट इज इक्वल्स टू 96500। दिस इज 96500 कूलम। तो ये चार्ज की वैल्यू है, दैट इज अ चार्ज ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 96,500 कूलम। तो आपके पास 1 मोल सोडियम आयन है और 1 मोल क्लोराइड आयन है। तो 1 मोल सोडियम आयन की चार्ज कितनी होगी, 1 फेराडे, और इसकी भी 1 फेराडे। तो 1 फेराडे और 1 फेराडे टोटल इलेक्ट्रिसिटी या टोटल चार्ज कितना हो गया, 2 फेराडे। यहां पर कितना चार्ज होगा, देखिए 2 फेराडे इसका और इसका भी 2 फेराडे, क्योंकि सल्फेट आयन पर नेट चार्ज कितना है, एक सल्फेट आयन पर चार्ज है 2, 1 मोल सल्फेट आयन है तो कितना हो गया 2Na, 2 फेराडे चार्ज हो गया। इसका भी 2 फेराडे और 2 फेराडे और 2 फेराडे कितना हो गया 4 फेराडे। इसके अंदर कितना हुआ, इसके 2 मोल्स बन रहे हैं और एक आयन +3 चार्ज कंटेन कर रहा है। कितना चार्ज कर रहा है, +3। तो ये हो गया 6 और इसका भी 6 और 6 12 फेराडे। We are dissolving the same amount of electrolyte in a particular solvent, but it will produce a different amount of charge. It will produce a different amount of ions. As they produce a different amount of ions,
they produce the different conductivity in the solution. इन तीनों के 1 मोल डिसॉल्व किए हैं, लेकिन इन तीनों सॉल्यूशंस की जो कंडक्टिविटी होगी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में वो डिफरेंट रहेगी. क्यों? क्योंकि दे विल प्रोड्यूस अ डिफरेंट नंबर ऑफ आयंस. इन्होंने डिफरेंट आयंस प्रोड्यूस किए, तो उन आयंस से जो प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी है वो डिफरेंट है. इससे डिफरेंट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, इससे डिफरेंट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी. इज इट क्लियर? इन तीनों सॉल्यूशंस की जो कंडक्टिंग पावर है वो अलग अलग है. हमने तीनों का अमाउंट सेम लिया, तीनों के 1 मोल लिए, लेकिन जैसे ये अपने रेस्पेक्टिव सॉल्यूशंस में रेस्पेक्टिव आयंस में डिसोसिएट हुए तो इनकी कंडक्टिंग पावर्स जो हैं वो क्या हो गई? चेंज हो गई. क्यों? क्योंकि दे विल प्रोड्यूस अ डिफरेंट नंबर ऑफ आयंस. इन्होंने अलग अलग अमाउंट में आयंस का प्रोडक्शन किया. इन्होंने 2 मोल आयंस का प्रोडक्शन किया, इन्होंने 4 मोल्स आयंस का प्रोडक्शन किया, और इन्होंने कितना किया? 12 मोल आयंस का प्रोडक्शन किया. एक ही मोल से इसके 2 मोल बन गए, इसके 1 मोल से कितने बन गए? 4 मोल बन गए, इसके एक ही मोल से 12 मोल आयंस बन गए. तो ये कितना इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है? 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी. ये आपका 4 फैराडे, ये आपका 12 फैराडे. सो these solution have a different strength of conductivity. Is it clear? समझ में आया? So different solution, different electrolytic solution have a different power of conductivity, different strength of conductivity. हम भले उनका अमाउंट सेम ले लें, सिर्फ अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता है, कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है. कंसंट्रेशन के साथ साथ उनकी अमाउंट ऑफ आयन प्रोडक्शन की जो कैपेबिलिटी है उस पर भी क्या करता है? आपकी कंडक्टिविटी डिपेंड करती है. इसलिए जो हमने कंडक्टिविटी का डेफिनेशन बोला है, दैट कंडक्टिविटी इज अ कंडक्टेंस ऑफ आयन प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन. यदि जो आयन 1 सेंटीमीटर क्यूब में प्रेजेंट है, वो आयन जो क्या करेंगे? नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस करेंगे. वो आयन से जो चार्ज प्रोड्यूस होगा, वो चार्ज क्या करेगा? जो कंडक्टेंस क्रिएट करेगा, वो कंडक्टेंस क्या बोल जाएगी? उसकी कंडक्टिविटी. Is it clear? Now we'll discuss 2 different type of conductivity. One is equivalent conductivity and second is molar conductivity. इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को हम बोलते हैं लैम्डा ई क्यूब, और मोलर कंडक्टिविटी को हम बोलते हैं लैम्डा एम. नाउ व्हाट आर दीज 2 डिफरेंट वैरायटी ऑफ कंडक्टिविटी? इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ये एग्जांपल आपको अभी शेयर किया, ये डिस्कस किया कि यदि हम अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स ले रहे हैं और उन इलेक्ट्रोलाइट्स के अलग अलग डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स के सेम अमाउंट ले रहे हैं, फिर भी ये क्या कर रहे हैं? सेम अमाउंट होने के बाद भी दे विल प्रोड्यूस अ डिफरेंट कंडक्टिंग पावर. ठीक है? अब सपोज मैं क्या करूं, इन तीनों के क्या करें? कंडक्टिंग पावर को इक्विवेलेंट बनाने के लिए यदि मुझे क्या करना है, इसकी कंडक्टिंग पावर कितनी थी? इट विल प्रोड्यूस अ 2 फैराडे चार्ज, इट विल प्रोड्यूस 4 फैराडे चार्ज, और ये कितना प्रोड्यूस कर रहा था? 12 फैराडे चार्ज. अब मुझे क्या करना है? इन तीनों की कंडक्टिंग पावर को इक्वल बनाना है. जैसा कि नाम बोला है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी. इन तीनों की कंडक्टिविटी को मुझे क्या करना है? इक्विवेलेंट करना है. क्या करना है? इक्विवेलेंट. तो मैं क्या करूंगा? नाउ आई विल टेक 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaCl, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Na2SO4 एंड 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट. तीनों के जब मैं 1 ग्राम इक्विवेलेंट लूंगा, अब ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? ग्राम इक्विवेलेंट होता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास, वो होता है ग्राम इक्विवेलेंट. मास आप मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस अपॉन इट्स मोलर मास. उसी तरीके से नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय इट्स इक्विवेलेंट मास. देखिए इक्विवेलेंट क्या होता है? मोल्स क्या होते हैं? मोल्स होता है अमाउंट डिवाइड बाय मोलर मास, और इक्विवेलेंट क्या होता है? दैट इज अमाउंट
डिवाइड बाय इट्स इक्विवेलेंट मास, अमाउंट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास। इसका जो रेशियो होता है वो होता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। तो यदि मैं तीनों इलेक्ट्रोलाइट्स के क्या 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 ले लूं, 1 इक्विवेलेंट, इसका 1 इक्विवेलेंट 1 ग्राम इक्विवेलेंट, इसका भी 1 ग्राम इक्विवेलेंट और इसका भी 1 ग्राम इक्विवेलेंट, तो तीनों के 1 ग्राम इक्विवेलेंट लेने से क्या होगा, जो नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस होंगे वो सेम हो जाएंगे। सो ऑल दीज 3 इलेक्ट्रोलाइट of having an amount of 1 gram equivalent have a same conductivity, so that conductivity is called equivalent conductivity। जो पहले ये 2 फैराडे चार्ज प्रोड्यूस कर रहा था उसके बजाय इसकी अब नंबर ऑफ चार्ज कितना हो जाएगा, 1 फैराडे, इसका भी 1 फैराडे हो जाएगा और इसका भी 1 फैराडे हो जाएगा। तो इसका मैंने 1 ग्राम इक्विवेलेंट लिया, इसका भी 1 ग्राम इक्विवेलेंट लिया और इसका भी 1 ग्राम इक्विवेलेंट लिया। Is it clear? So that conductivity is called equivalent conductivity. So how can we define an equivalent conductivity of the solution? One second. So how can we define an equivalent conductivity of solution? That equivalent conductivity of solution is conducting power of all the ions. Equivalent conductivity of solution is conducting power of all the ions produced in the solution by dissolving the 1 gram equivalent in a V centimeter cube of solution। कैसे डिफाइन करेंगे, मैं वापस से डेफिनेशन बोल रहा हूं। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन इज कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय डिसॉल्विंग 1 gram equivalent of an electrolyte in V centimeter cube of the solution। Is it clear? वापस से रिपीट कर रहा हूं, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन इज द कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय dissolving 1 gram equivalent of electrolyte in V centimeter cube of solution। ठीक है, मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं। Equivalent conductivity of solution is conducting power of all the ions produced by dissolving 1 gram equivalent of electrolyte in V centimeter cube of solution। मतलब इट इज अ कंडक्टिंग पावर ऑफ आयंस, और वो आयंस कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं, बाय डिसॉल्विंग 1 gram equivalent of electrolyte in V centimeter cube of solution। ठीक है, मतलब आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, lambda m is equals to kappa into V। देखिए, इट इज अ कंडक्टिंग पावर मतलब कंडक्टिविटी। So it is a conducting power of all the ions produced by dissolving 1 gram of equivalent of electrolyte in V centimeter cube of solution। आपने क्या किया है, उस इलेक्ट्रोलाइट को V सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया है। तो लैम्डा m इज इक्वल्स टू kappa into V।
ठीक है। और जब इस V को मैं रिलेट करूंगा, नॉर्मेलिटी का डेफिनेशन क्या होता है आप बता सकते हैं? व्हाट इज नॉर्मेलिटी? व्हाट इज नॉर्मेलिटी? एनीबडी? हाँ, आप ही से पूछ रहा हूं, आप लोगों से। नॉर्मेलिटी क्या होता है? हाँ, इक्विवेलेंट ऑफ solute present in 1 liter of solution या volume of solution in liter, यानी नॉर्मेलिटी क्या हुआ? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यदि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को लीटर से आपको सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे? 1 लीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं? देखिए, ये है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये V ले लिया। यदि इसको मुझे सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो क्या करूंगा मैं? 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। हाँ जी बताइए, 1000 से मल्टीप्लाई करना है, 1000 से डिवाइड करना है? वॉल्यूम को लीटर से सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? जल्दी से बताएं। आप ही लोगों से बात कर रहा हूं मैं, साइलेंट नहीं रहना है। वॉल्यूम को लीटर से सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आवाज आ रहा है मेरा? क्या? हाँ सर, तो क्या जवाब तो दे ही नहीं रहे हैं कोई। नॉर्मेलिटी इज नंबर ऑफ इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन अ 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट पर लीटर। तो वॉल्यूम इन लीटर क्या हो गया? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट डिवाइड बाय n। तो अब देखिए, मैं एक्चुअली जो सेकंड एक्सप्रेशन डिराइव करने के लिए इतना सारा आपसे, वॉल्यूम इन लीटर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कितने हैं आपका? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज 1 एंड द 1 बाय n, ये आपका आ गया वॉल्यूम इन लीटर, दैट इज 1 बाय n। 1 बाय n क्यों आया? क्योंकि वी आर डिसॉल्विंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ अ इलेक्ट्रोलाइट। बट यहां हमें वॉल्यूम किसमें चाहिए? लैम्डा इज इक्वल्स टू कापा इनटू वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब। तो लीटर से वॉल्यूम को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 1000 से मल्टीप्लाई, ये हो गया। तो 20 सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू क्या हो गई? 1000 बाय n। सो लैम्डा m का एक्सप्रेशन क्या आया? कापा इंटू 1000 बाय n। So that is a equivalent conductivity of the solution. Lambda m is lambda equivalent is equals to kappa, यहाँ पर भी मैंने गलत लिख दिया, lambda equivalent होगा, equivalent molar conductivity है, equivalent molar conductivity is kappa into 1000 by n. That is the conducting power of all the ions produced by dissolving 1 gram of equivalent in a V centimeter cube of solution. तो equivalent conductivity क्या हुआ? Conductivity into 1000 by normality। जैसे ही आप नॉर्मेलिटी चेंज करेंगे आपको वॉल्यूम भी क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। Whenever we dissolving a different equivalent of the electrolyte, we will require a different volume।
आपको सोल्यूशन का डिफरेंट वॉल्यूम चाहिएगा, बिकॉज मोलर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या है, कंडक्टिविटी ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय या डिसॉल्विंग बाय 1 gram of equivalent in a V centimeter cube of solution. Is it clear? समझ में आया? ठीक है, अब इसका मुझे यूनिट डिस्कस करना है, तो इसका यूनिट क्या होगा, देखिए कापा का यूनिट क्या होता है, कापा का यूनिट मैंने डिस्कस किया था ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ऐसा यूनिट ये होता है। लेकिन यहाँ हम क्या कर रहे हैं, सारी कैलकुलेशंस ऐसा सीरीज में कर रहे हैं, क्योंकि वी आर टेकिंग अ गैप बिटवीन द इलेक्ट्रोड इज 1 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कापा का यूनिट क्या हो जाएगा, कापा का यूनिट हो जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो हियर नाउ विल डिस्कस यूनिट ऑफ लैम्डा इक्विवेलेंट। तो कापा का यूनिट है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। क्या हुआ, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। और ये जो वॉल्यूम है इसका हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, और आपका डिनोमिनेटर में क्या है, 1 इक्विवेलेंट है, तो ये हो जाएगा इक्विवेलेंट इनवर्स। क्योंकि this equivalent conductivity is produced by dissolving 1 gram of equivalent of a electrolyte. तो ohm inverse into centimeter inverse into centimeter cube divided by equivalent inverse। इससे यदि आप रिलेट करेंगे तो आपको और क्लियरली समझ में आ जाएगा। कापा का यूनिट हो जाएगा ohm inverse centimeter inverse, यहाँ वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में दे रखा है, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब डिवाइड बाय 1 ग्राम इक्विवेलेंट, क्योंकि नॉर्मलिटी क्या है 1 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, तो ये हो जाएगा इक्विवेलेंट इनवर्स। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। सो दैट इज अ यूनिट ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। ओम इनवर्स को एक और भी बोलते हैं, महो बोलते हैं, या फिर सीमेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीमेन या फिर महो। ओम इनवर्स का उल्टा महो, सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। इज इट क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट, द सेकेंड टाइप ऑफ कंडक्टिविटी इज मोलर कंडक्टिविटी। सो मोलर कंडक्टिविटी को कैसे डिफाइन करेंगे? Molar conductivity of the solution is the conducting power of all the ions produced by dissolving 1 mole of electrolyte in a V centimeter cube of solution। वहां हमने क्या लिया था, 1 ग्राम इक्विवेलेंट लिया था। इलेक्ट्रोलाइट का कितना अमाउंट लिया था, 1 ग्राम इक्विवेलेंट। बट मोलर कंडक्टिविटी में क्या करेंगे, वी आर टेकिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। व्हाट वी आर टेकिंग, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। So how can we define a molar conductivity? मोलर कंडक्टिविटी के लिए फॉर्मूला रहेगा लैम्डा एम। देखिए इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के लिए मैंने लैम्डा एम जो फॉर्मूला सिंबल बोला था वो गलत था, उसके लिए था लैम्डा ई क्यूब। तो मोलर कंडक्टिविटी के लिए आपका सिंबल क्या रहेगा, लैम्डा एम। सो हाउ कैन वी डिफाइन द मोलर कंडक्टिविटी? इट इज conductivity of all the ions या conducting power of all the ions produced by dissolving 1 mole of electrolyte in V centimeter cube of solution। 1 mole of electrolyte in a V centimeter cube of solution। तो lambda m is equals to kappa into V। ठीक है, बट यहाँ आप V की जो वैल्यू होगी वो अलग रहेगी। उसके लिए हमें क्या डिफाइन करनी पड़ेगी, मोलारिटी। मोलारिटी इज
नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर क्या आया, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय मोलारिटी। मोलारिटी को हम सिंपलाइज करते हैं m से। अब वॉल्यूम इन, अब हमने नंबर ऑफ मोल्स कितने लिए हैं, बाय डिसॉल्विंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो वॉल्यूम इन लीटर कितना आया, दैट इज 1 बाय m, और उसको सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से। तो ये हो जाएगा 1000 बाय m। तो आपका वॉल्यूम का अब वैल्यू कितना आ जाएगा, 1000 बाय m। तो आपका मोलर कंडक्टिविटी का यूनिट क्या एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, और मोलर कंडक्टिविटी इज lambda m is equals to kappa into 1000 by m. That is the expression of molar conductivity. Conductivity into 1000 divided by molarity. Equivalent conductivity था kappa into 1000 by normality, और molar conductivity होगा conductivity into 1000 by molarity। और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, जहां इक्विवेलेंट इनवर्स आया था उसकी जगह क्या आ जाएगा, मोल इनवर्स। तो यूनिट हो जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, because we are producing the conductivity by dissolving 1 mole of electrolyte in a V centimeter cube of solution. Is it clear? तो आज हमने 3 बेसिक्स डिस्कस किए, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इज एनी डाउट?